Can see my screen, right? Yes. Okay. So did you practice for switch case? Any issue? Yes. Yes, sir. No issue. Okay. If any So, issue, let me know. Okay. Yeah. So let me show you what is a package and how to import a package. Then I will show you constructor overloading. And first of all, I will show you what is function overloading. Access modifiers and concepts. AI modifiers and input from user. Scanner and command line arguments. Okay. These three programs we will see in next class. Okay. Okay. Yeah. Because before that, I will give you one more problem to reverse the number. Then we will see how to. Then it will come. It will be useful in neon number. Then I will explain what is a neon number. Okay. So reverse number and check palindrome. This will be your problem to solve for next class. Okay. So in last class, we saw how to create a class and object, right? Means what is a class, what is the use, what is the object, how to create an object, how it gets memory, what is new keyword, what are constructors, everything. So any doubt from the previous class? Shreyans, Lucky, any doubt? No. Okay. Yeah. Okay. So let me show you what is a package. First of all, let me show you what is the structure of Win and a source folder where we create a Java project. So this is a source folder where we create the program.java files, and when we compile and when we run the program, what is generated and where it's get generated. Okay. So let me show in Explorer. So this is our project folder. This is our SRC folder. So here you will see all the class having .java extension. So programmer write program in source classes. Extension is .java. So this is called source classes. If you open these classes, you can read what you have written. See,
Whatever you're writing, you're writing in .java extension. So when we try to run the program, first step, we need to compile the .java code. Earlier already explained, right? JVM or any other programming executions or JVM or any other programmer executor that does not understand the languages itself. We need a mediator to convert high level language to machine level language, right? So same way, when we try to run this source classes, this all files, it get compiled into bytecode. So who compiles that? Java compiler compiles dot Java files to dot class files. Dot class files contain bytecode. Which is executed by JVM processors. Okay. So which command compiles .java to .class files? So that command name is Java. Java and the .java class name. So let's see, I want to compile my first program .java. So the command will get run my first program. Program.java. So this command will compile .java file to .class file. Java C. Java compiler. Okay. So it will compile my first program.java file to .class, and where that .class file is located? You see, in out folder, my first program.class. If I open this, it's all bytecode, which can be understood only by the JVM. Only JVM can understand this one. Programmer cannot understand this. Clear? And when we run the program, the command will be used Java, then it will be my first program. That's it. So it will run this program. So it will run which one? It won't run .java file. It will run .class file. So first Java C command is to compile from .java to .class, and Java command is to run that .class file. Any doubt in this one? No, sir. Okay. So what is a package? So whenever we are writing a lot of code, lot of classes, so we group them according to their functionality or according to their behavior characteristics. We group into one folder. So the folder is called package. So all the related class will be into that package. So when we want to access that class, we need to import that package. Then only we will be able to access that class. Let me show you. Let me delete all this class. I will create one package. New. You will go package. So I will give you .com Java learn.java. I gave this package. I will create class under this package. I give Java practice.
Okay. Now I can create one more package. I will give com dot Java learn dot okay. Now you see the structure. So there is a package com.learn.java. So there is another class which is directly under this package com.learn.java. And there is another package I have created inside that package. The class is there, Java practice 2. So it will show like this. If 1 second. Okay. Okay. We went to SRC, then com, learn, then Java. There is Java practice.java class. Then we create another package other. There is another class Java practice 2. Okay. So it creates the directory structure. See, if I create one more package, x dot y dot z package, and that xyz package, I will create one more class x. Okay. I will create one more package. Give hello practice. See, you see this one? This is another package. If I unexpand this is another package, hello.practice. So Java is under which package? Hello.practice. So if I want to check in directory where it will be, it will be under SRC, under hello, and then under practice. Let's see. SRC, hello, practice, then hello Java.java. Similarly, there is another class X. So if you see, this is under package X, Y, Z. So it will be under SRC, then X, then Y, then Z. So folder structure will be like that. Let's see. SRC X under X, Y,
then Z, then this is the class. Okay, now we will compile this one. Any question in this? यहाँ अगर डॉट यूज कर रहे हैं तो डॉट का मतलब फिर नेक्स्ट क्लास अपने आप क्रिएट करेगा डॉट के लिए, सपोज Dot? x डॉट y डॉट z। X dot Y dot Z नहीं समझ में नहीं आया कैसे? नहीं, अभी जैसे अंदर गए थे तो जैसे x के अंदर y फोल्डर बन रहा था, y फोल्डर के अंदर z फोल्डर बन रहा था, हाँ 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 तो ये x डॉट y डॉट z की वजह से हो रहा है। यस मतलब यस डॉट जहाँ यूज कर रहे हैं वहां पे नया फोल्डर क्रिएट कर रहा है। यस, मतलब X के अंदर Y का फोल्डर बन जाएगा, Y के अंदर Z फोल्डर बन जाएगा, हाँ, उसके अंदर एक क्लास जनरेट होगी। तो ये डॉट से हम क्रिएट कर सकते हैं ना। यस, ओके, आईडी में तो डायरेक्ट यूज करते हैं ऐसे, डायरेक्ट राइट क्लिक करो पैकेज क्रिएट किया। आईडी यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें पैकेज लिखना पड़ेगा, पैकेज देन ये डॉट डॉट लाइक दिस। सो ये सिंटेक्स है। आईडी में मैंने डायरेक्ट जनरेट किया तो सिंटेक्स जनरेट हो जाता है। तो दो टाइप्स है, या तो आईडी यूज करके करो या फिर डायरेक्ट ये सिंटेक्स लिखो। ये सिंटेक्स होना चाहिए तभी ये पैकेज समझ पाएगा कि ये इस पैकेज के अंदर है। ओके, ओके, मैं इसके अंदर इसको मेन क्लास बना देता हूँ एक बार के लिए। पब्लिक स्टैटिक okay, it ran and it has compiled also. Let's see now structure. See, so when it got compiled, in compiled folder also it will be the same, x under x y, then under z, then class x dot class. So similar structure it will create in bytecode also. So the byte dot class also will be in the same folder structure when it will be get compiled. Okay. या So if you want to use this class hello.java, hello Java. So let's see, I create one here method. Let's see, void. Okay, I created a method in hello Java class which is under package hello.practice. Okay, I will go a class X which is under package XYZ. I will create one object hello Java object new. So I'm creating one object. If you see, when I clicked on hello Java, I clicked one space, so automatically it got imported. Import. Let's see. Let me remove it.
what it will say, it will show in red color, compile error. We need to write cannot resolve symbol hello Java. What you understand with this one? So class X does not know about hello Java class because it's under another package. Clear? So we need to import that class from that folder. So how to import? Import. Then we need to give package name. What is the package name? Hello.practice. Hello Java. And then semicolon. Now it will be understand. Okay, hello Java is coming from this package. If we don't import, we don't write this line, it will give compile time error. Okay, let me show you. Obj, I will run print hello. Let me remove this import line. Then I will run the. See, cannot find symbol, cannot find class hello Java. So this class X does not know where the hello Java is coming from. So that's why we need to import. So we will write import. Semicolon. Now if I run this now, see hello Java from hello Java class. Clear? What is a package? Why to import? सर एक बार लास्ट वाला वापस बताना ये कौन सा? ये हेलो जावा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इसके बाद से ये हमने इंपोर्ट क्यों किया? हाँ सर ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिखी hello Java object new hello Java. So means मैं I am creating one object of hello Java, right? यस सर फिर मैं उसका मेथड कॉल करा रहा हूँ ऑब्जेक्ट प्रिंट हेलो. तो ये प्रिंट हेलो उस मेथड में है, क्लास में है. बताता हूँ, क्लास में मेथड लिखा है ना. हाँ यस तो सर ये ऑब्जेक्ट से कॉल होना चाहिए. ये कॉल हो जाना चाहिए, राइट? हाँ यस सर बट ये दूसरे पैकेज के अंदर है. ये दूसरे फोल्डर के अंदर है. ये XYZ फोल्डर के अंदर है, ये दूसरे फोल्डर के अंदर है. तो जब क्लासेस डिफरेंट पैकेज में होती है ना, तो वो समझ नहीं पाती कि वो क्लास कहाँ से आ रही है. तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है JVM को कि ये क्लास वो वाले लोकेशन पे मौजूद है. ओके तो वो इंपोर्ट के थ्रू बताता है वन हाँ, तो इंपोर्ट से हम बताते हैं JVM को कि ये क्लास आप वहां पे जाके सर्च करिए. तो कहाँ पे जाके सर्च करेगा वो? हेलो फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, और क्लास का नाम, इसको सर्च करो. वो JVM को बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर जाके, इस फोल्डर के अंदर जाके ये क्लास को चेक करो इसके लिए. तो ये क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. अगर ओके डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो, सेम पैकेज के अंदर है तो जरूरत नहीं है. जैसे मैं इसके अंदर एक और नई क्लास बना दूं, सेम पैकेज के अंदर, सेम पैकेज हमने लास्ट टाइम भी किया था ना. इसको मैं क्लास बाई कर देता हूँ. क्या मैंने क्लास बाई, ओके. फिर मैंने इसको हटा दिया. अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्लास X का. देखो कोई एरर नहीं दे रहा ना. यस सर क्योंकि क्लास X सेम पैकेज में है जिसमें क्लास Y है, सेम पैकेज के अंदर है. तो ऑटोमेटिकली JVM समझ जाता है कि ये सेम पैकेज में है, इसलिए. तो JVM सबसे पहले कहाँ सर्च करता है? सेम पैकेज में. तो सेम पैकेज में अगर नहीं मिल रही है तो वो एरर थ्रो करता है. और जब वो एरर थ्रो करता है तो वो एरर थ्रो करने से पहले वो क्या चेक करता है कि इंपोर्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ. अगर इंपोर्ट किया हुआ है तो रन हो जाता है, इंपोर्ट नहीं किया हुआ था तो कंपाइल टाइम एरर दे देता है.
Clear? Yes. Okay. Lucky, clear to you, right? Yeah. Okay. So this is package and how to import package. Similar. Now I will show you, I will tell you what are the OOPS concept. So as I already explained, Java, we mostly follow OOPS concept. OOPS concept means object oriented. Object oriented, whatever we will do any method or any execution or program, we will do via objects only. Right? I explained that we create first class template, then we create an object, all the method are defined in the classes, and then we call those method using objects. So nothing we call directly. We write every code inside the class. So there are mostly 3-4 concept in OOPS. First is P. What is P meaning? In short form, we call it PIE. First is polymorphism. Second one is I. What is I? Inheritance. And third one is encapsulation. Okay. So these three are the most important pillars of OOPS. So we will go with first encapsulation. What is an encapsulation? Encapsulation is like a capsule. We combine everything in one package. जैसे एक कैप्सूल होता है राइट, एक कैप्सूल मेडिकल में कैप्सूल होता है, उसमें सारी दवाइयाँ और जो भी केमिकल होता है एक कैप्सूल के अंदर बंद करके हम दे देते हैं राइट। तो जो भी एक्सेस करना है, जो भी उसमें होंगे सब चीजें वो कैप्सूल के अंदर होंगे। तो सिमिलरली जावा में क्या होता है, जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं उसके डेटा मेंबर्स, उसके मेथड सब सेम क्लास के अंदर होंगे। तो अगर हमको उसका कुछ मेथड कॉल करना है या उसका डेटा मेंबर कॉल करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही कर पाएंगे। ये तो क्लियर है ना आपको? Yes, sir. जैसे हम लास्ट टाइम क्रिएट किया था, स्टूडेंट क्रिएट किया था ना, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट, उसके डेटा मेंबर भी अंदर थे और स्टूडेंट क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, सारे मेथड्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम क्लास के अंदर थे। तो उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। सर एक बार वो वाला कोड बताना, एक बार उस कोड से एक बार समझाना। कोड मैंने शायद डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ। मैं लास्ट टाइम एक व्हीकल क्रिएट किया था राइट। व्हीकल के टेम्पलेट में हमने क्या क्या क्रिएट किया था? स्ट्रिंग ब्रांड नेम, स्ट्रिंग इंजन टाइप, मॉडल, लेट्स से फ्लोट एवरेज। हमने मेथड क्रिएट किए थे void
रिवर्स। ठीक है, तो क्लास टेम्पलेट के अंदर हमने उसके डेटा मेंबर्स, मतलब उसके पास क्या क्या डेटा है क्लास के पास, और उसके मेथड क्या क्या है, क्या क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेम क्लास के अंदर लिखते हैं, राइट। तो इसको यस बोलते सर। हैं हम इनकैप्सुलेशन, उसके डेटा मेंबर्स, मेथड्स इनटू ए सिंगल क्लास। तो जो भी व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके डेटाज होंगे, वो सब ये क्लास के अंदर होंगे। इट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और इस यस। एनकैप्सुलेशन को और बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, उसके डेटा मेंबर्स को, उसके डेटा मेंबर्स को कर देते हैं प्राइवेट। ये मैंने कर दिया प्राइवेट। एक मेन क्लास बनाता हूँ, बताता हूँ। V dot, so it will show what are the methods available to call। सी V के पास क्या क्या मेथड है, अप्लाई ब्रेक है, गो फॉरवर्ड है, गो रिवर्स है, तीन मेथड डिफाइन किए ना हमने। बट अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ब्रांड नेम को, सो बी डॉट ब्रांड नेम, मैंने दिया ये टाटा। अब ये एरर देगा, ब्रांड नेम इन हैज प्राइवेट एक्सेस इन व्हीकल। सो व्हीकल के अंदर ब्रांड नेम प्राइवेट है। देखो, व्हीकल के अंदर ब्रांड नेम प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट डेटा है, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि उसके डेटा मेंबर्स को हम लोग प्राइवेट कर देते हैं, फिर उसको एक्सेस करने के लिए हम गेटर सेटर्स बनाते हैं। ये वैल्यू गेट करने के लिए, सेटर्स वैल्यू सेट करने के लिए। ओके, मैं ये डेटा मेंबर प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए तो ये यहाँ से एक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ से प्राइवेट कीवर्ड हटा दूं, प्राइवेट हटा दिया मैंने यहाँ से, अब एक्सेस हो जाएगा। देखो, अब कोई एरर नहीं दे रहा, राइट, नो रेड, कोई एरर नहीं है इस पे। तो जो हम लिखते हैं ना, तुम पहले पूछ रहे थे कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जो इसको एक्सेस दिया हुआ है इन मेंबर्स को, डेटा को या मेथड को, इसके एक्सेस मॉडिफाई कर सकते हैं। सो तीन चार टाइप के एक्सेस होते हैं, प्राइवेट, फिर होता है डिफॉल्ट, फिर होता है प्रोटेक्टेड, फिर होता है पब्लिक। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में जो भी उसके डेटा मेंबर और मेथड्स हैं कैन बी एक्सेस्ड विद इन क्लास ओनली।
तो जो मैंने एग्जांपल दिया प्राइवेट, ये क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। मैं दूसरी क्लास से, मेन क्लास से कॉल करूंगा v डॉट ब्रांड नेम, तो ये एक्सेसिबल नहीं है, एरर देगा। ब्रांड नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन द व्हीकल, बट मैं इसको इनसाइड द क्लास यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये मेथड में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ब्रांड नेम इज इक्वल टू, यहाँ कोई एरर नहीं देगा। तो सेम क्लास के अंदर ये एक्सेसिबल है, ब्रांड नेम फॉर प्राइवेट। सो प्राइवेट जो होगा, मेथड होंगे या डेटा होगा, जो भी कुछ होगा, वो सेम क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर पाएंगे, बाहर के क्लास में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके। फिर होता है एक डिफॉल्ट। ये कहाँ पे एक्सेस होता है? कैन बी एक्सेस्ड विद इन क्लास, विद इन क्लास एंड अदर क्लास, बट इन सेम पैकेज। ये है डिफॉल्ट। मतलब अगर मैं प्राइवेट सारे हटा दूं, ये होगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सेस। तो ये सेम सेम पैकेज है, क्योंकि मैंने पैकेज डिफाइन नहीं किया। मैं एक दूसरा पैकेज डिफाइन करूं, पैकेज जो व्हीकल क्लास है और मेन क्लास है वो दोनों सेम पैकेज में होंगे तो डिफॉल्ट वाला एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। यस 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 यस। ओके। मैंने कुछ नहीं लिखा, शायद कुछ नहीं लिखा ना। तो ये सेम पैकेज में है ना, एसआरसी के अंदर है, तो एक्सेस कर हाँ सकते हैं। हाँ। तो ये और तुम सर जैसे जैसे डिफॉल्ट वाला दूसरे पैकेज में है और जो मेन क्लास वाली जो फाइल है ये कोई दूसरे पैकेज में, तो उसको नहीं कर सकते अपन बिल्कुल भी। नहीं 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 करें, ट्राई करना। ये होमवर्क है, ये ट्राई करना। ओके सर। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लियर करूंगा। हाँ सर। प्रोटेक्टेड मैं तुमको इनहेरिटेंस के बाद बताऊंगा। इनहेरिटेंस के बाद पब्लिक, पब्लिक का मीनिंग है कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो सबसे सबसे ज्यादा एक्सेस किसको मिला हुआ है? पब्लिक को। ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम, अगर मैंने पब्लिक लिख दिया तो। सेम पैकेज में, डिफरेंट पैकेज में, आउटसाइड ऑफ द पैकेज, इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, सबको कॉल कर सकता है ये। ठीक है। और फिर हमने उसके डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दिया, तो अब हम वैल्यू कैसे सेट करेंगे? सेकंड थिंग ये है इनकैप्सुलेशन में कि डेटा मेंबर तो हमने प्राइवेट कर दिए उसके, तो उसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे? वैल्यू वैल्यू लेंगे भी कैसे? राइट। मैंने इसको प्राइवेट किया था, तो इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स की वैल्यू सेट करने के लिए और वैल्यू गेट करने के लिए हम ये जनरेट करते हैं गेटर्स और सेटर्स। तो इसमें राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक के बाद जाओगे जनरेट पे, जनरेट के बाद आएगा गेटर्स। ये गेटर किस किस डेटा मेंबर के लिए गेटर चाहिए हमें, तो वो जनरेट कर दो सबके लिए, सेलेक्ट कर लो। गेटर जनरेट हो गए। फिर मैं एक सेटर मेथड जनरेट करूंगा। सर ये क्या होता है गेट की सेटर? हाँ, एक सेकंड, सेटर जनरेट किया। अब जैसे मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर्स प्राइवेट कर दिए राइट, व्हीकल क्लास के, क्या उसके ब्रांड नेम कैसे सेट करूंगा मैं? वैल्यू कैसे दूंगा? वैल्यू कैसे गेट करूंगा? देखो यहाँ पे अच्छा एरर दे दूसरी रहा है ना। क्लास में। हाँ, दूसरी क्लास में।
हाँ ये सर। क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया, राइट? ये सर। तो जावा इसलिए भी सिक्योर है कि इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर होता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मेंबर एक्सेसिबल है, किसको एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो सब रोक लगा के रखते हैं हम लोग। तो ये प्राइवेट कर दिए। इसमें हमने, अब हम इसको कैसे सेट करेंगे? मैंने गेटर सेटर जनरेट किए हैं। तो मैं मान लो सेट मेथड कॉल किया, सेट ब्रांड नेम। उसके मैंने ब्रांड नेम सेट कर दिया क्या? हटाओ बी डॉट, मैं इसको प्रिंट करूंगा। बी डॉट गेट ब्रांड नेम। आ गया? ये सर। तो सेट ब्रांड नेम क्या है? मेथड है, कुछ नहीं है। सेटर इज ए मेथड टू सेट द वैल्यू। सी, मेथड है पब्लिक, रिटर्न टाइप void, सेट ब्रांड नेम। पैरामीटर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, फिर इसको हम सेट कर रहे हैं। ब्रांड नेम इक्वल टू ब्रांड नेम। सर एक क्वेश्चन और पूछना था हम्म। सर। अगर ना ये जो क्लास के आगे पब्लिक लिखते हैं, अगर इसको भी प्राइवेट और ये करे तो एक्सेस मॉडिफायर इसमें भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, ये करते हैं। वो क्या केस होगा फिर सर उसके लिए? उसके लिए केस होगा कि उसके अंदर भी डिफॉल्ट क्लास होती है, पब्लिक क्लास होती है, और एक क्लास के अंदर भी क्लास होती है। तो तीनों के ही केस हैं, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी यूज की जाएगी। हम्म, और इस अगर सेटर को अगर प्राइवेट कर देंगे तो फिर ये सेटर भी नहीं एक्सेस हो पाएगा मेन क्लास में। नहीं, नहीं हो पाएगा। उसको भी मैंने अगर प्राइवेट कर दिया हम्म। तो ये भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे एरर देगा ये। फिर तो इसका मतलब फिर यूज ही नहीं रहेगा सेटर का मतलब। हाँ, सेटर ही बनाया ही, बनाना ही इसलिए ताकि वैल्यू सेट कर पाए। हाँ। जिस चीज का सेटर नहीं होगा उसकी वैल्यू सेट नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी हमेशा। ठीक है। और श्रेया से क्वेश्चन था कि यहाँ पे अगर हम प्राइवेट और पब्लिक कर दें, डिफॉल्ट कर दें तो क्या होगा, राइट? या ये सर। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक जो भी हम क्लास बन रही है ना, ये पब्लिक डॉट क्लास, ये जो मेन क्लास बनी है, व्हीकल डॉट डॉट क्लास जो फाइल बनी है, एक सेकेंड, आउट के अंदर हेलो के जा, ये मेन क्लास डॉट डॉट क्लास जो बाइट कोड बना है, इस क्लास का नाम जो मेन क्लास है, ये पब्लिक क्लास के लिए ही बनती है। तो अगर हम इसके अंदर पब्लिक क्लास लिख रहे हैं किसी फाइल के अंदर, या डिफॉल्ट लिख रहे हैं, तो उसका क्लास का नाम हमेशा पब्लिक से लेगा वो। मेन क्लास हमेशा पब्लिक रहेगी प्राइवेट में। मेन क्लास नहीं, मतलब जो भी बाइट कोड का क्लास का मान नाम लीजिए होगा ना, वो मतलब। पब्लिक से लिया हम्म। जाएगा। तो तुम नीचे एक और क्लास के अंदर, सेम फाइल के अंदर दूसरी क्लास भी लिख सकते हो। हम्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी एक और क्लास, कुछ मैंने आगे पब्लिक नहीं लिखा, क्लास लिख दी मैंने टेस्ट, लिख दी ना क्लास। हम्म। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो एक और क्लास बन गई ना, टेस्ट डॉट क्लास। हाँ हाँ। ये जो क्लास है डिफॉल्ट बनी है अभी, तो ये सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगी। और अगर इसको भी हटा दिया जाए, इस फाइल तो है, इसको हटा देते हैं।
समझ में आया? तो जो पब्लिक क्लास है वो, तो अगर हमने यहाँ पब्लिक लिखा है तो ये बाकी पैकेज से भी एक्सेसिबल होगी। पब्लिक नहीं लिखा है तो ये सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल होगी पूरी की पूरी क्लास। सेम कंसेप्ट है, ट्राई करना है ये। मतलब एक क्लास को एक पैकेज के अंदर लिखना, उसको पब्लिक करना, और एक क्लास को नॉन पब्लिक रहने देना, डिफॉल्ट रहने देना, फिर दूसरे पैकेज से उसको ट्राई करना एक्सेस करने का, एक्सेस होता है कि नहीं होता। ठीक है? श्रेया, सुधीर? Yes sir, yes. या तो ट्राई दैट वन, Okay sir. है ना? डिफॉल्ट सेम पैकेज में एंड पब्लिक फ्रॉम एनी पैकेज। और अभी मैंने बताया कि जिसका सेटर नहीं बना हुआ है, जैसे मैंने इसका कॉल किया, मैंने बस बी डॉट सेट ब्रांड नेम किया, तो बाकी की वैल्यू क्या होंगी? बताओ क्या होंगी बाकी की वैल्यू? मैंने, अगर मेरे को वैल्यू चाहिए गेट इंजन टाइप, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंजन टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने सेट नहीं की है। Yes sir. नल आएगी, Yes sir. उसकी वैल्यू सेट कर दूंगा। अगर मैं सेट इंजन टाइप, सेट हो गई। Yes sir. तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि सारे डेटा मेंबर, उसके मेथड्स विद इन सेम क्लास, और उसके डेटा मेंबर्स को बना दो प्राइवेट, और उसको एक्सेस करने के लिए जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। इट इज पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। एनी डाउट? No. No No. sir. ओके। तो इनकैप्सुलेशन होता है मोस्टली कंबाइन द डेटा एंड मेथड एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द मेथड्स एंड द डेटा मेंबर्स। सब इसके अंदर आता है इनकैप्सुलेशन के अंदर। इसके अंदर डेटा प्राइवेसी भी आता है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो एक बार तुम इसको रीड करना, मैं तुमको लिंक दूंगा कि इनकैप्सुलेशन के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे कैसे कैसे आंसर करना है। ओके, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड व्हाई वी यूज इनकैप्सुलेशन इन जावा। Okay. नोट कर लो ताकि तुम पढ़ पाओ, मैं लिंक भी दे दूंगा तुम्हें, तो थ्योरी पढ़ पाओगे। प्रैक्टिकल यूज मैंने तुम्हें बता दिया कि डेटा मेंबर्स को हिडन कर देते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बाकी क्लासों से हिडन कर देते हैं, उसको सब सेट करना है, गेट करना है, तो वाया गेटर सेटर्स और अदर मेथड्स। ठीक है, अभी मैं तुमको बताऊंगा कि इनपुट कैसे लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि इनपुट हम यूजर से कैसे लेंगे और उस पर वर्क कैसे करेंगे, राइट? सर ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म रह रहा है। ये हम एक एक क्लास में कवर करेंगे, ये बड़े बड़ी चीजें हैं। अच्छा ओके ओके। हाँ, ये एक दिन में नहीं हो पाएंगे। ये एक दिन का चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में ही एटलीस्ट 2 days लगेंगे, और इनहेरिटेंस में भी 2 दिन लगेंगे। पूरी जावा उसका उस कंसेप्ट इन्हीं पे टिकी हुई है, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन छोटा है तो ये एक दिन में हो जाता है, बट पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा है। ओके, सब कवर ओके करेंगे सर। हम एक एक करके। स्कैनर देख लेते हैं और एक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स देख लेते हैं। तो मैं जो भी लिखता हूँ मेन मेथड में स्ट्रिंग एंड ये str,
ये क्या है? ये होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जो कमांड से आ रहा है। कमांड कौन सी है? कौन सी कमांड रन करती है इसको बताओ, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेन मेथड को कौन सी कमांड रन करती है? जावा। दो कमांड बताई थी ना, एक जावा और जावा सी। हाँ सर, जावा सी। तो जावा सी तो कंपाइल करेगी, डॉट क्लास में कन्वर्ट करेगी, बट रन कौन करेगी? जावा जावा कमांड। जावा कमांड हमेशा रन करती है। जावा कमांड प्लस मेन मेथड, जिसमें मेन मेथड है तो हम उसको बोलते हैं मेन क्लास। जिसमें मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये मेन क्लास हो जाती है। तो जावा, तो ये ऐसे रन करता है जावा मेन क्लास, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स। तो जो भी आर्गुमेंट दिए मैंने, एक्स फिर वाई फिर जेड, ये जो भी स्ट्रिंग वैल्यू दी है ना, ये इसमें आ जाती है स्ट्रिंग एरे में। उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इसको बताने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में एरे, व्हाट इज एरे। So we will have array, we will have polymorphism and constructor overloading। फिर हम देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, ये मेन टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट क्लास के। अभी तो मैं बता देता हूँ स्कैनर कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। एक क्लास में आता हूँ, जावा क्लास। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का। ये दिख रहा है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्कैनर sc न्यू कीवर्ड एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्कैनर एंड आई एम पासिंग। कहाँ से इनपुट लेना है? सिस्टम से लेना है। सिस्टम डॉट इन का मतलब कंसोल से लेना है। कंसोल, ये इसका कंसोल है, इस तरह से लेना है। तो जब हम sc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे,
तो ये जब तक वहां पे प्रोग्राम स्टॉप रहेगा जब तक कि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं कर देते। और अगर हम यहाँ पे कर दूंगा sc डॉट फ्लोट, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। आ गया 5.2। तो sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट का मतलब इसको चाहिए जब यूजर इनपुट करेगा फ्लोट वैल्यू, तब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 12 पे। तब तक ये 10 पे ही रहेगा, लाइन नंबर 10 पे, जब तक कि यूजर फ्लोट वैल्यू एंटर नहीं कर देता। फिर ये 13 लाइन नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूजर ने इंटीजर वैल्यू डाली है कि नहीं डाली। यूजर ने इंटीजर वैल्यू डाली है तभी ये आगे बढ़ेगा, नहीं डाली है तो यहीं पे स्टक रहेगा प्रोग्राम। एनी डाउट? तो सर इसके लिए ना ये इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util। हाँ, क्योंकि ये स्कैनर सेम पैकेज में नहीं है ना, हमारे प्रोग्राम में नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम में हमने नहीं लिखा, सेम पैकेज के अंदर नहीं है ना, ये जावा ने प्रोवाइड किया है लाइब्रेरी के अंदर, तो ये किसी न किसी पैकेज के अच्छा अंदर है। अच्छा, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी पैकेज के अंदर ऑलरेडी जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब मैंने स्कैनर लिखा है तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है। एक्चुअली मेरी आईडी में ऑटोमेटिक सेटिंग है, तो जब मैं लिखता हूँ कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है। ये देखो, ओके सर। तो अगर तुम्हें देखना है कि कहाँ है तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी में जाओ। एक्सटर्नल लाइब्रेरी में कहाँ है? जावा मैथ में नहीं है, जावा सब दिखेगा कौन सी पैकेज में है। देखो, ये लाइब्रेरी यूजर ही जावा 11, जावा 11 का ये पैकेज है जावा। तो जावा के अंदर है ये, जावा एक्स के अंदर भी नहीं है, जावा के अंदर ये है, जावा के अंदर, जावा के अंदर यूटिल यहाँ पे है ये। एस पे जाओगे तो दिख जाएगा। ये कौन सी लाइब्रेरी में है? जावा बेस के अंदर नहीं है, जावा बेस के अंदर, जावा यूटिल के अंदर। बहुत लंबा है पर इसके अंदर ही है ये इधर। हाँ सर। ऐसे कि करके देखेगा नहीं। तो जब भी जावा इंस्टॉल करेंगे तभी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी उसके साथ में, पैकेजेस वगैरह। हाँ, ये ऑटोमेटिक जावा जब हम सेट करेंगे ना, पाथ में सेट किया होगा तुमने। हाँ हाँ। जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो किस पे रन कर देंगे, जावा पे करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो जो भी लाइब्रेरी जावा ने प्रोवाइड की है वो तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। तो सर उस टाइम जब इंस्टॉल करते थे वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछता है ऐड टू पाथ का ऑप्शन आता है उसमें। हाँ, राइट 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 राइट, तो वहीं से उठाता है ये। देखो मेरे पास ये है जावा JDK 11 के अंदर, तो इसके अंदर है ये यस सर। जावा यूजर्स, जावा, जावा JDK 11, इसके अंदर है ये लाइब्रेरी JDK 11।
बिन बिन के अंदर यही कहीं से ले रहा है वो, लाइब्रेरी। इन्हीं में रहती है लाइब्रेरीज, डॉट लिब वगैरह रहती है ना, सारे फोल्डर्स, सारी लाइब्रेरीज, जार फाइल, और इनके अंदर ही रहती है सारी क्लासेस। ओके। स्कैनर बेसिकली इनपुट के लिए यूज करते हैं। हाँ, इसके ना इनपुट के लिए यूज करते हैं। मान लो अब तुम्हें स्ट्रिंग इनपुट चाहिए, तो स्ट्रिंग के लिए कैसे करोगे? स्ट्रिंग लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट के लिए क्या कर दोगे? मैं देता हूँ स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग इनपुट sc डॉट नेक्स्ट। तो sc डॉट नेक्स्ट करेंगे, मतलब इंटीजर उसको स्ट्रिंग इनपुट चाहिए। मैंने अपना नाम दिया रजनीश, एंटर किया तो आ जाएगा योर नेम इज रजनीश, तो इनपुट ले लिया स्ट्रिंग। सर ये जो ऑब्जेक्ट नेम हमने डिफाइन किया ना SC, हाँ, मतलब ये जो स्कैनर के बाद में जो ऑब्जेक्ट नेम लिखा है SC, तो जो स्कैनर है वो हमारा मेन कीवर्ड है या फिर जो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम ही है एक तरह से? नहीं, स्कैनर तो क्लास है ना, मैंने बताया था सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम हो गया ना स्कैनर, क्लास का नाम। ये इंस्टेंस का नाम हो गया, ये न्यू कीवर्ड हो गया, ये हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया। यस सर, कंस्ट्रक्टर हो गया। कीवर्ड नहीं है ये क्लास का नाम है। ओके ये ओके क्लास कौन से पैकेज में है? ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल के अंदर है। अगर तुम उसको उसके क्लास को देखना है तो उस पे करो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल कंट्रोल एंड क्लिक, ये तुमको ले जाएगा क्लास पे। कहाँ है ये क्लास? ये क्लास है पैकेज जावा डॉट यूटिल के अंदर, और तुम देख भी सकते हो कि इस क्लास के अंदर लिखा हुआ क्या है, कोड भी देख सकते हो। ओके ओके सर। तो जो SC है वो हमारा प्री डिफाइंड, मतलब यूजर डिफाइंड SC टर्म है ना? एससी तो मैंने डिफाइन किया है, एससी तो बस एज अ एलियासिंग टर्म है एक तरह से ना? इंस्टेंस का नाम दिया मैंने, तो ये तो वेरिएबल का नाम, इंस्टेंस का नाम ही है, तो मैं कुछ भी दे यस सकता यस। हूँ। ओबीजी दे दिया, ये इसी इंस्टेंस से कॉल, इसी से कॉल होगा। जो भी इसके मेथड है उसके नाम से तो कॉल होंगे, बार बार थोड़ा ना न्यू स्कैनर स्कैनर लिखेंगे। क्लास तो एक बार क्रिएट हो गई ना, तो उसको हमने एक रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल नाम दे दिया, रेफरेंस नाम दे दिया, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस नेम। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का नाम, रेफरेंस नेम, न्यू कीवर्ड, एंड देन क्लास का कंस्ट्रक्टर। न्यू कीवर्ड उसको बताएगा जेवीएम को कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, उसकी वैल्यू असाइन होंगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या क्या असाइन होगा, डिफॉल्ट वैल्यूज। यस सर। और सिस्टम डॉट इन कर रहे हैं तो ये वाले कंस्ट्रक्टर से ये असाइन कर देगा। हाँ यस। तो जावा में सब क्लास और ऑब्जेक्ट का ही खेल है। क्लास के अंदर डेटा वेरिएबल्स होंगे, मेथड्स होंगे, उसके मेथड हमें कॉल करने हैं, दूसरी क्लास पे यूज करने हैं, मैनिपुलेट करना है। ये जावा बस इतना ही काम रहता है। अब तुमको देखना है कि स्कैनर के पास क्या क्या मेथड्स हैं, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्जेक्ट लिखो, तो उस मतलब उसका रेफरेंस नाम लिखो, डॉट लिखो, कंट्रोल स्पेस करो, और माउस ओवर भी कर सकते हो। देखो, ये सारे मेथड्स दिखाएगा कि इसके पास ये मेथड है, क्लोज करने का मेथड है, डेलीमीटर फाइंड ऑल का मेथड है, इतने सारे मेथड्स हैं इसके। डबल वैल्यू के लिए भी है, मान लो डबल वैल्यू चाहिए तो मैं यूजर से नेक्स्ट, डबल डबल वैल्यू के लिए आ गया। हर टाइप की वैल्यू के लिए है स्कैनर।
ओके ओके सर। ओके, तो अभी तुम जो बाकी प्रोग्राम रह गए स्कैनर वाले, यूजर इनपुट वाले, वो करोगे, और एक रिवर्स वाला करोगे, रिवर्स नंबर एंड चेक पैलिंड्रोम। फिर करोगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स टेस्ट करोगे, चारों एक्सेस मॉडिफायर्स इनको करके देखोगे, और क्लास लेवल पे भी करोगे, हम्म, और इनसाइड द क्लास जो भी है सब करोगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके। और वो थोड़ा कमांड लाइन के बारे में पूछना था, मतलब कमांड लाइन के थ्रू अगर वो प्रोग्राम अगर क्रिएट करते हैं तो कुछ। कमांड लाइन का बताऊंगा मैं जब हम एरे बताएंगे कल की क्लास में, नोट किया हुआ है। ओके। हाँ, एरे के साथ ठीक। तो मैं एरे बताऊंगा कि एरे क्या होता है, हम्म। क्योंकि मैं उसको बता तो दूंगा पर उसमें एरे भी यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ये एरे का सिंबल है कि एरे क्या होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके साथ बताऊंगा। ठीक अभी स्कैनर से करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कमांड लाइन से करेंगे। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एल्स वी कैन क्लोज फॉर द डे। ठीक है। नो सर। ओके, सर इसकी रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेगी हमको, जैसे? रिकॉर्डिंग श्रीकांत ने लिंक भेजा था ना, इसका भी वो भेज उसमें देगा। नहीं है एक्चुअली, मेरे वाले ग्रुप में जो पहले क्रिएट किया हुआ था ना उसमें था, मैं इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा वो सब। ठीक है ठीक है, हाँ कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो फॉरवर्ड कर दिया करो सेम ग्रुप में। हाँ हाँ। ओके, ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड बाय, नाइट, गुड नाइट। बाय।